بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، امید آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ سلطان شمس الدین التمش پارٹ 25۔ سلطان شمس الدین التمش گوالیار والوں کو ان کی ماضی کی غلطیوں اور تکبر اور گھمنڈ کی سزا دینے کے لیے دہلی سے نکلا۔ گوالیار والوں نے بھی اسی گھمنڈ اسی تکبر کا مظاہرہ کیا جو بھیلسا والوں نے کیا تھا۔ جس طرح بھیلسا والے باہر نکل کر سلطان شمس الدین التمش کے لشکر سے ٹکرائے تھے، اسی طرح گوالیار والوں نے بھی سلطان شمس الدین التمش کا مقابلہ کرنے کے لیے اپنے لشکر کو قلعے سے باہر استوار کیا تھا۔ تاہم انہوں نے بھیلسا والوں جیسی غلطی نہیں کی۔ بھیلسا والے اپنے قلعے سے کافی آگے نکل آئے تھے، اور جب انہیں شکست ہوئی تو سلطان کے لشکریوں نے انہیں شہر میں داخل نہ ہونے دیا، لیکن گوالیار والوں نے اس کی پیش بندی کر لی تھی۔ اول یہ کہ وہ فصیل کے قریب رہے، دوم یہ کہ اپنے لشکر کے پیچھے دائیں بائیں انہوں نے کچھ دستے مقرر کر دیے تھے جو شہر پناہ کے اس دروازے کی حفاظت پر مقرر تھے جو دروازہ ان کے لشکر کے پیچھے تھا۔ گوالیار کی فصیل کے قریب دونوں لشکر ایک دوسرے کے سامنے صف آرا ہوئے۔ گوالیار کی طرف جانے کے لیے بھی سلطان شمس الدین التمش اور اس کے سالاروں نے عجیب و غریب راستہ اختیار کیا تھا۔ دہلی سے متھرا، وہاں سے بھرتپور اور پھر گوالیار کا رخ کرنے کی بجائے سلطان دہلی سے روانہ ہوا۔ متھرا کی طرف جانے کی بجائے اس نے ریواڑی کا رخ کیا، اس شاہراہ پر چڑھا جو شاہراہ پاک پتن سے ریواڑی کی طرف آتی تھی۔ اس شاہراہ پر چڑھنے کے بعد سلطان آگے بڑھا، مہاوا پہنچا، وہاں سے بھرتپور پہنچا، بھرتپور سے وہ بھاری گیا اور بھاری پہنچنے کے بعد تیزی سے آگے بڑھا اور گوالیار کی شہر پناہ کے شمال میں اپنے لشکر کو اس نے پڑاؤ کرنے کا حکم دیا تھا۔ دونوں لشکر ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہوئے۔ احتیاط کی خاطر سلطان شمس الدین التمش نے نواحی علاقوں میں اپنے مخبر پھیلا دیے تھے تاکہ گوالیار والوں کی مدد کے لیے اگر کوئی لشکر آئے تو بر وقت اس کی اطلاع مل سکے۔ اس کے بعد دونوں لشکروں نے اپنی صفیں درست کی۔ سلطان نے اپنے لشکر کو پہلے کی طرح 3 حصوں میں تقسیم کیا، تاہم اس بار اس نے لشکر کی کمانداری میں تھوڑی بہت تبدیلی کی تھی۔ لشکر کے وسطی حصے میں وہ خود رہا اور حسب سابق عز الدین کو اپنے ساتھ رکھا۔ اس بار سلطان شمس الدین التمش نے لشکر کے دائیں حصے کی کمانداری قزلق خان کے حوالے کی تھی۔ کبیر خان کو اس کے ساتھ اس کے نائب کی حیثیت سے رکھا تھا اور بائیں پہلو کا کماندار علاؤ الدین جانی تھا اور سیف الدین کوچی اس کی نیابت کر رہا تھا۔ لشکر کے کچھ دستے سلطان شمس الدین التمش نے لشکر کی پشت پر اپنے پڑاؤ کی حفاظت پر مقرر کر دیے تھے۔ جب دونوں لشکر اپنی صفیں درست کر چکے تب حملہ آور ہونے کی ابتدا گوالیار والوں نے کی۔ گوالیار والوں کو ایک اور غلط فہمی اور گھمنڈ بھی تھا۔ وہ یہ سوچ رہے تھے کہ سلطان شمس الدین التمش اپنے مرکز سے دور گوالیار والوں سے ٹکرانے کے لیے آیا ہے، لہٰذا وہ زیادہ عرصے تک گوالیار اور اس کے نواح میں قیام نہیں کر سکے گا، اسے رسد اور کمک کی قلت کا سامنا کرنا پڑے گا۔ خود وہ اس گھمنڈ میں تھے کہ ان کے پیچھے گوالیار ہے اور شہر سے انہیں ضرورت کی ہر شے میسر ہوگی۔ اس بنا پر انہوں نے پہلے حملہ آور ہو کر سلطان کو نقصان پہنچانے کا عزم کیا اور اس عزم کو سامنے رکھتے ہوئے گوالیار والوں نے حملے میں پہل کرنے کا فیصلہ کیا۔ گوالیار کا راجہ منگل دیو اس وقت اپنے لشکر کے اندر موجود تھا اور اپنے لشکر کے وسطی حصے میں تھا۔ اس کے باپ کا نام مالدیو تھا، دونوں بڑے جنگجو تھے۔ اپنے لشکر کے حصے میں منگل دیو تھا، اس کے ارد گرد سازندے مختلف ساز لیے انہیں بجاتے ہوئے اپنے لشکریوں کے اندر ایک نیا جذبہ اور جوش پیدا کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ چنانچہ اسی صورتحال کو سامنے رکھتے ہوئے منگل دیو کے حکم پر اس کا لشکر سلطان شمس الدین التمش کے لشکر پر حملہ آور ہوا تھا۔ جوابی کارروائی پہلے سلطان شمس الدین التمش نے کی اور وہ بھی خونی لمحوں کی یورش کی طرح حملہ آور ہو گیا تھا۔ سلطان کے بعد قزلق خان اور کبیر خان حرکت میں آئے۔ دونوں نے پہلے مل کر ایسی زوردار اور روانی کے ساتھ تکبیریں بلند کی کہ تکبیروں کی للکار سے تیگ پناہ مانگے۔ ان کی روانی سے دریا روانگی بھول جائیں، ایسی خوفناکی تاری ہو کہ جبر اپنی ترتیب بھول جائیں۔ اس کے بعد قزلق خان اور کبیر خان دونوں زبان کی حرکت میں خوف زدہ آوازیں بھر دینے والے قضا کے ہولناک قصوں کی طرح حملہ آور ہو گئے تھے۔ قزلق خان اور کبیر خان کے پیچھے ہی پیچھے علاؤ الدین جانی اور سیف الدین کوچی نے بھی اپنے کام کی ابتدا کی، اور وہ بھی غیظ و غضب کی انگڑائی، بغض و عداوت کی شرر انگیزی کی طرح آگے بڑھے۔ اس کے بعد وہ دونوں بھی اپنے حصے کے لشکر کے ساتھ فطرت کی ہولناکیوں کی طرح حملہ آور ہو گئے تھے۔ گوالیار کے نواح میں دونوں لشکروں کے ٹکرانے سے تباہی کی آگ، مایوسی کی گھٹائیں، برق کے گہوارے کروٹیں لیتے طوفان، نفس کی بھوک، قضا کی ہوک، بے لگام تاثرات رزم گاہ میں چاروں طرف رقص کرنے لگے تھے۔ لگتا تھا جیسے بہت سے جوالا مکھیوں کے ان گنت دہانے کھل گئے ہوں یا چاروں طرف ستم کے برستے تازیانوں نے اپنا کام شروع کر دیا ہو۔ چہروں پر علم ناکیوں کے انبار لگنے لگے تھے، خون آشام تلواریں سماعتوں اور بصارتوں کو گروی رکھنے لگی تھی۔
कुछ देर तक इंतहाई होलनाक अंदाज में दोनों लश्कर एक दूसरे से टकराते रहे। उसके बाद ग्वालियर के राजा ने महसूस किया कि उसके लश्कर के अंदर बददिली के आसार नमूदार होना शुरू हो गए हैं, इसलिए कि मुसलमानों ने उसके लश्कर की कई सफ़ों को पके हुए खेत की तरह काटकर बिसात की तरह जमीन पर बिछा दिया था। थोड़ी देर की मजीद जंग के बाद खुद राजा और उसके सेनापतियों ने देखा उनके लश्कर की हालत शिकस्त खोरदा ओहाम के जरनिगार चेहरों पर मर्ग की स्याही, जिस्म पर लर्जिश टपकने लगी थी और मजमूई तौर पर उनकी हालत बिखरे पत्तों की लाशों, दीमक ज़दा दर्दोबाम, वहशत की पतझड़, ख्यालात की मिस्मार होती कायनात, बेकरां सहरा की वैरानियों, अंधे किरदार की खूनख्वारी और बद अखलाकी के ज़ाब्तों से भी ज्यादा बुरी होना शुरू हो गई थी। ये सूरत हाल देखते हुए राजा ने आखिरी फैसला किया, शिकस्त को कबूल किया और अपने लश्कर में पसपा होने के नरसिंगे उसने बजवा दिए थे। उन नरसिंगों की आवाज सुनते ही ग्वालियर के राजा का लश्कर एकदम पीछे हटा और शहर के अंदर महसूर हो गया था। शमसुद्दीन अल्तमश और उसके सालार शिकस्त खोरदा लश्कर को शहर में दाखिल होने से रोक ना सके, इसलिए कि राजा ने फसील के साथ अपने लश्कर के दो बड़े हिस्से दाएं बाएं खड़े कर दिए थे ताकि मुसलमानों का कोई लश्कर पहलू की तरफ से आगे बढ़ते हुए उसके लश्कर को शहर में दाखिल होने से रोक ना सके। इस बिना पर राजा ग्वालियर में महसूर होने में कामयाब हो गया था। शहर में दाखिल होते ही लश्कर का बड़ा हिस्सा ग्वालियर के राजा मंगल देव ने फसील के ऊपर बुर्जों और किले के खिलाल के पीछे मुकर्रर कर दिया था। खुद उसने फसील पर चढ़ने के लिए जो सीढ़ियां बनी हुई थी उनके करीब ही अपने सारे सालारों का इजलास तलब कर लिया था। जब सारे सालार उसके पास जमा हो गए तब कुछ देर तक राजा मंगल देव इंतहाई अफसोसनाक और उदास अंदाज में सोचता रहा, फिर अपने सारे सालारों को मुखातिब करके कहने लगा, इस जंग के नताइज कतई तौर पर हमारी उम्मीदों के खिलाफ साबित हुए हैं। मैं इससे पहले ये ख्याल करता था कि दहली का सुल्तान शमसुद्दीन अल्तमश इससे पहले छोटे मोटे लश्करियों से टकराता रहा है, लिहाजा वो फतह याब रहा है। दिल में मैंने ये भी इरादा कर रखा था कि जिस रोज वो हमसे टकराएगा उस रोज उसे खबर होगी कि जंग क्या होती है। लेकिन आज के टकराव ने मुझे बेहद मायूस और अफसुर्दा किया है। मुझे अपनी ताकत और कुव्वत पर बड़ा नाज था और मुझे 100% उम्मीद थी कि ग्वालियर के नवाह में शमसुद्दीन अल्तमश को हम बदतरीन शिकस्त देने में कामयाब हो जाएंगे। इसी बिना पर मैंने शहर से बाहर निकलकर उसकी राह रोकी और उसे टकराने का अज़्म किया। अगर मुझे पहले से खबर होती कि मामला इस नौयत का है तो मैं कभी भी अपने लश्कर के साथ शहर से बाहर ना निकलता, बल्कि महसूर रहकर जंग को तूल देता, यहाँ तक कि मुहासरे की तवालत से तंग आकर अल्तमश खुद ही वापस जाने पर मजबूर हो जाता। अब हमारे लश्कर का काफी नुकसान हो गया है। अगर मेरा पूरे का पूरा लश्कर इस वक्त मेरे पास होता तो यकीनन मैं गाहे बगाहे वक्फा से शहर से निकलकर शमसुद्दीन के लश्कर पर शब खून मारने की कोशिश करता और हमलावरों को मजबूर करता कि वो अपना पड़ाव उठाकर यहाँ से चलते बने। यहाँ तक कहने के बाद राजा मंगल देव जब खामोश हुआ तब उसका एक सालार बोला और कहने लगा, बेहतर यही है कि हम चंद हफ्तों तक खामोशी इख्तियार किए रहें, अपने आप को सिर्फ दिफा तक महदूद रखें। जिस कदर लश्कर हमारे पास है उसको दो हिस्सों में तकसीम कर दें। एक हिस्सा दिन के वक्त फसील पर पहरा दे और दूसरा रात के वक्त। रात के वक्त पूरी फसील पर जगह जगह मशलें रोशन रखी जाए और इतनी रोशनी का एहतमाम किया जाए कि फसील के करीब आती हर मुतहर्रिक चीज फसील पर बैठे हमारे लश्करियों को दिखाई देती रहे। साथ ही नए लश्करी भर्ती करके अपने लश्कर की ताकत और कुव्वत को बहाल किया जाए। मेरा अपना अंदाजा है कि चंद रोज तक शमसुद्दीन अल्तमश भी अपने लश्करियों को सुस्ताने का मौका फराहम करेगा, लेकिन वो मोहतात भी रहेगा। उसे यह भी खदशा रहेगा कि कहीं हम शहर से बाहर निकलकर अचानक उसके लश्कर पर शब खून ना मारें। इस बिना पर वो अपने लश्कर के किसी न किसी हिस्से को हम वक्त चौकस और मुस्तैद रखेगा। इस बिना पर इन दिनों अगर हमने अल्तमश के लश्कर पर शब खून मारने की कोशिश की तो हम नुकसान उठाएंगे। बेहतर यही है कि चंद हफ्ते खामोशी इख्तियार किए रहें, इसके बाद हालात को देखते हुए नया कदम उठाने की कोशिश करेंगे। अपने उस सालार की उस गुफ्तगू को राजा मंगल देव ने पसंद किया था। कहने लगा, मैं तुम्हारी तजवीज से इत्तेफाक करता हूँ। जिस कदर लश्कर इस वक्त हमारे पास है उसे दो हिस्सों में तकसीम कर दो। एक हिस्सा दिन के वक्त और एक हिस्सा रात के वक्त फसील पर पहरा देगा। इसके अलावा आम हालात में फसील के ऊपर जिस कदर मशलें जलती थी उनकी तादाद 3 गुना ज्यादा कर दो। फसील का हर हिस्सा अंदर और बाहर से रोशन रहना चाहिए और सालारों की भी तकसीम का काम अंजाम दिया जाए। कुछ सालार दिन के वक्त कुछ रात के वक्त चौकस रहेंगे और कुछ सालार ऐसे मुकर्रर किए जाएं जो दिन और रात दोनों वक्तों में फसील के ऊपर पहरा देने वाले लश्करियों की निगरानी का फर्ज अदा करेंगे। अगर हम ऐसा करने में कामयाब हो गए तो याद रखना, मुसलमानों को हम शहर की फसील के करीब नहीं आने देंगे, और अगर ऐसा हो गया तो शमसुद्दीन अल्तमश कुछ अरसे मुहासरा जारी रखेगा। उसके बाद जब वो देखेगा कि उसका मुहासरा लाहासिल होता जा रहा है तो वो अपने लश्कर के साथ यहाँ से कूच करने वाली बात करेगा। यहाँ तक कहने के बाद मंगल देव रुका, फिर अपनी बात को आगे बढ़ाता हुआ वो कह रहा था,
लेकिन इस जंग ने मेरी आंखें खोल दी हैं। अब मैं अपनी ताकत और कुव्वत में ऐसा इजाफा करूंगा कि आने वाले दौर में कोई भी हमलावर ग्वालियर को अगर अपना हदफ और निशाना बनाने की कोशिश करेगा तो उसे मुंह की खानी पड़ेगी और शिकस्त उठाकर वापस जाना पड़ेगा। उठो, अब लश्कर की तकसीम का काम सर अंजाम दे और साथ ही सालारों को भी तकसीम करें कि किसने रात को किसने दिन के वक्त फसील के ऊपर रहना है और कौन कौन से सालार दिन और रात के मुख्तलिफ हिस्सों में फसील पर पहरा देने वालों की निगरानी भी करेंगे। उसके साथ ही मंगल देव उठा और उसके साथ ही उसके सारे सालार भी उठकर लश्कर की तकसीम के काम में लग गए थे। दूसरी तरफ सुल्तान शमसुद्दीन अल्तमश ने भी अपने लश्कर को पीछे हटा लिया था और पड़ाव में ले गया था। पड़ाव ग्वालियर की फसील से इतना दूर था कि अगर फसील के ऊपर से बड़ी कमान से भी तीर चलाया जाता तो वो सुल्तान शमसुद्दीन अल्तमश के पड़ाव में नहीं पहुंचता था। पड़ाव में पहुंचने के बाद सुल्तान शमसुद्दीन अल्तमश ने अपने लश्कर के उस हिस्से को जिसे उसने अपने पड़ाव की हिफाजत पर रखा था चौकस कर दिया। बाकी लश्करियों को आराम करने का मौका दिया और साथ ही जो लश्करी जख्मी हुए थे उनकी मरहम पट्टी और देखभाल का बेहतरीन काम शुरू हो गया था। उस हालत में कुछ दिन गुजर गए। जंग में जो जख्मी हुए थे वो बिल्कुल ठीक हो गए। एक रोज सुल्तान शमसुद्दीन अल्तमश फिर ग्वालियर पर हमलावर होने के लिए अपने खेमे से बाहर अपने सालारों से सलाह मशवरा कर रहा था कि सुल्तान के कुछ मुखबिर वहां आए। करीब आकर वो घोड़ों से उतरे। हाथ के इशारे से सुल्तान ने उन्हें अपने करीब आने को कहा। जब वो करीब गए तब सुल्तान ने बड़े गौर से उनकी तरफ देखते हुए पूछ लिया, क्या तुम कोई अच्छी और नई खबर लेकर आए हो? इस पर उन आने वालों में से एक सुल्तान शमसुद्दीन अल्तमश को मुखातिब करके कहने लगा, सुल्तान मोहतरम, खबर नई है लेकिन अच्छी नहीं। मामला यूं है कि करामतियों के सरबराह कौर ने अपने दस्ते रास्त और नाइब इसराम के साथ मिलकर अपने सारे जंगजू करामतियों को जमा करना शुरू कर दिया है। सिर्फ एक इलाके गुजरात को मुस्तस्ना करार दे दिया गया है। वहां जिस कदर करामती हैं उन्हें इतला नहीं दी गई। बाकी जिस जिस जगह भी करामती हैं और वो जंग का बेहतरीन तजर्बा रखते हैं उन्हें कौर ने इकट्ठा करने का हुक्म दे दिया है। इसके बाद वो क्या कार्रवाई करना चाहता है इसकी अभी तक कोई खबर नहीं हुई और ना ही इसकी कहीं से कोई अफवाह उड़ी है। वो मुखबिर यहीं तक कहने पाया था कि सुल्तान शमसुद्दीन अल्तमश ने उसे मुखातिब करके पूछ लिया, पहले ये बताओ कि कौर ने अपने करामती जंगजुओं को कहां और किस जगह जमा करना शुरू किया है। इस पर वो मुखबिर फिर बोला और कहने लगा, सुल्तान मोहतरम, कौर ने अपने सारे करामती जंगजुओं को गंगा और जमुना के दोआबा में जमा होने का हुक्म दे दिया है और अब हालत यह है कि हर तरफ से जंगजू करामती भेस बदलकर कभी ताजरों कभी मजहबी आदमियों के भेस में गंगा जमुना के दोआबा में जमा होना शुरू हो गए हैं। गंगा और जमुना के दोआबा में इस तरह वारिद हो रहे हैं जैसे अनगिनत बरसों की भूखी चीलें मुर्दार पर उतरती हैं। यहां तक कहने के बाद वो जासूस रुक गया। कुछ सोचा, दोबारा सुल्तान को मुखातिब करते हुए वो कह रहा था, सुल्तान मोहतरम, उनके जमा होने का तरीक़ाकार भी खूब है। उनके पास कोई खेमा नहीं है, ताहम कौर ने एक ऐसा गिरोह जरूर मुकर्रर किया है जिसने गंगा जमुना के दोआबा में खुराक और जरूरियात के दूसरे सामान के ढेर लगाने शुरू कर दिए हैं और उस सिलसिले में महाकाल मंदिर के अंदर जो लश्कर है वो भी पूरी तरह कौर और इसराम के साथ है और उनकी मदद कर रहा है। महाकाल मंदिर से भी उनके लिए खुर्दो नोश के सामान के अलावा जंग में काम आने वाले हथियार भी भेजे जा रहे हैं। सुल्तान मोहतरम, अभी करामती सिर्फ गंगा जमुना के दोआबा में जमा हो रहे हैं। वहां जमा होने के बाद वो क्या कार्रवाई करते हैं इसकी कोई खबर नहीं। वो मुखबिर जब खामोश हुआ तब सुल्तान उनकी तरफ देखते हुए कहने लगा, तुम आने वाली शब यहाँ आराम करो, इसके बाद फिर अपने काम में लग जाओ। उसके साथ ही सुल्तान के कहने पर वो मुखबिर जब वहां से हट गए तब सुल्तान कुछ देर सोचता रहा, फिर अपने सालारों को मुखातिब करके कहने लगा, मेरे अजीज साथियों, मुखबिरों ने जो कुछ कहा तुमने भी सुना, मैं भी सुन चुका हूँ। अब बताओ क्या करना चाहिए। सुल्तान शमसुद्दीन अल्तमश जब खामोश हुआ तब तफक्कुरात का इजहार करते हुए इज़्ज़ुद्दीन कहने लगा, सुल्तान मोहतरम, इसमें कोई शक नहीं, ग्वालियर के लश्कर को हम बदतरीन शिकस्त दे चुके हैं और ग्वालियर का राजा मंगल देव हमारे हाथों शिकस्त उठाने के बाद ग्वालियर में महसूर हो चुका है। लेकिन अभी ये किस्सा खत्म नहीं हुआ। हमने अभी ग्वालियर फतह नहीं किया, सिर्फ मंगल देव को शिकस्त दी है। मंगल देव यकीनन शहर के अंदर महसूर होने के बाद अपनी ताकत और कुव्वत को बहाल करेगा और मुहासरे को तूल देने की कोशिश करेगा। ऐसी सूरत में ये भी खदशात उठ सकते हैं, ये जो गंगा जमुना के दोआबा में कौर की सरबराही में करामती जमा होना शुरू हो गए हैं, कहीं वो उस वक्त हम पर हमलावर होने की कोशिश ना करें जिस वक्त हम ग्वालियर की फसील पर हमलावर होने में मसरूफ हों, या उस वक्त हम पर शब खून ना मारे जिस वक्त हमारे लश्कर की अक्सरियत आराम कर रही हो। इस बिना पर मैं चाहता हूँ इन करामतियों का बंदोबस्त ग्वालियर से पहले हो जाना चाहिए। इज़्ज़ुद्दीन जब खामोश हुआ तब सुल्तान कुछ सोचते हुए कहने लगा, इज़्ज़ुद्दीन, जो कुछ तुमने कहा है मैं इससे पूरी तरह इत्तेफाक करता हूँ और इससे मुत्तफिक हूँ।
मैं खुद चाहता हूं कि हमें दो कुव्वतों के दरमियान नहीं पिसना चाहिए। करामतियों का तो गंगा के दोआबा में इस तरह से जमा होना हमारे लिए खतरनाक भी हो सकता है, और वो इस सिलसिले में ग्वालियर के राजा मंगल देव से साजबाज भी कर सकते हैं कि मंगल देव के साथ कोई दिन मुकर्रर कर लें कि सामने की तरफ से मंगल देव हमलावर हो और अचानक कहीं कमीनगाह से निकलकर करामती हमारी पुश्त या पहलुओं की तरफ से हमलावर हो जाए। ऐसी सूरत में हमारे लिए मसाइल उठ सकते हैं। लिहाजा मैं चाहता हूं कि ग्वालियर की फतह से पहले पहले करामतियों का बंदोबस्त कर लेना चाहिए। उस मौके पर कजला खान सुल्तान शमसुद्दीन अल्तमश की तरफ देखते हुए कहने लगा, सुल्तान मोहतरम, मेरे जहन में एक तजवीज है, शायद उसे आप काबिल अमल जाने। जो लश्कर इससे पहले मेरे और कबीर खान के तहत काम करता रहा है वो हम दोनों के हवाले कर दे। हम आने वाली शब के पहले हिस्से में बड़ी राजदारी के साथ यहाँ से कूच करेंगे। ये जो मुखबिर आए हैं ये भी हमारे साथ हमारी राहबरी के लिए जाएंगे। गंगा जमुना के दोआबा तक पहुंचने से पहले मैं और कबीर खान अपने लश्कर को दो हिस्सों में तकसीम कर लेंगे और गंगा जमुना के दोआबा से मुख्तलिफ हिस्सों की तरफ आगे बढ़ेंगे। इस सिलसिले में हमारे मुखबिर हम दोनों की रहनुमाई करेंगे। चुनाचे आधी रात के वक्त करामतियों पर एक तरफ से मैं और दूसरी तरफ से कबीर खान हमलावर हो जाएगा। इस तरह मेरा अंदाजा है कि जब गंगा जमुना के दोआबा में जमा होने वाले करामतियों पर इस तरह का दो तरफा हमला होगा तो रात के वक्त उस हमले के बायस अव्वल तो करामतियों के एक बड़ी तादाद को हम मौत के घाट उतार देंगे। अगर उनमें से कोई बच भी निकला तो फिर वो आने वाले दौर में हमारे लिए बिल्कुल जरा रिसा ना रहेगा। कजला खान की सारी गुफ्तगू सुनने के बाद सुल्तान शमसुद्दीन अल्तमश ने जवाब तलब से अंदाज में अपने पहलू में बैठे इज़्ज़ुद्दीन की तरफ देखा। उस मौके पर इज़्ज़ुद्दीन कुछ देर मुस्कुराता रहा, फिर कहने लगा, सुल्तान मोहतरम, कजला खान का कहना दुरुस्त है। ग्वालियर का मुहासरा तूल पकड़ सकता है और मेरा अंदाजा है कि तूल पकड़ेगा, और इस दौरान फिर करामता गंगा जमुना के दोआबा में मजीद ताकत और कुव्वत पकड़ सकते हैं। अगर इस वक्त उन पर जरब लगा दी जाए तो मेरे ख्याल में उनकी कुव्वत को तहस नहस किया जा सकता है। साथ ये भी कोशिश की जाए कि उनके दोनों सरबराह कोर और इस्लाम को जिंदा गिरफ्तार किया जाए और फिर सरेआम उन दोनों को ऐसी इबरत अंगेज सजा दी जाए कि उनकी हालत देखते हुए करामती लरज कांप जाए और आने वाले दौर में मुसलमानों के खिलाफ कोई भी साजिश करने की जुर्रत और जसारत ना करें। इज़्ज़ुद्दीन की उस गुफ्तगू से सुल्तान शमसुद्दीन अल्तमश ने इत्मीनान का इजहार किया था। चुनाचे कजला खान की तरफ देखते हुए कहने लगा, कजला खान, तुम और कबीर खान तैयार हो जाओ। थोड़ी देर तक लश्कर का एक हिस्सा तुम दोनों के हवाले करके मैं तुम्हें इस मुहिम पर रवाना करना चाहता हूँ। तुम्हारी रवानगी से पहले मैं कुछ मुसल्ला जवान उस शाहरा के आगे और दाएं बाएं फैला दूंगा जिस शाहरा पर सफर करते हुए तुमने गंगा जमुना के दोआबा का रुख करना है, ताकि ग्वालियर के मुखबिरों को यह खबर न होने पाए कि मुसलमानों के लश्कर का एक हिस्सा ग्वालियर के नवाह से निकलकर गंगा जमुना के दोआबा की तरफ जा चुका है। सारे सालारों ने उससे इत्तेफाक किया था, लिहाजा थोड़ी देर बाद उस लश्कर को तैयार किया गया जिसने कजला खान और कबीर खान के साथ जाना था। सारे इंतजामात मुकम्मल किए गए। लश्करों की रवानगी से पहले कुछ मुसल्ला जवान कुछ मुखबिरों की राहबरी में रवाना किए गए ताकि उस शाहरा को दुश्मनों के जासूसों से साफ करते जाएं। जिस शाहरा पर सफर करते हुए कजला खान और कबीर खान दोनों ने अपने लश्कर के साथ गंगा जमुना के दोआबा की तरफ जाना था। थोड़ी देर बाद कजला खान और कबीर खान एक लश्कर लेकर ग्वालियर के नवाह से गंगा जमुना के दोआबा की तरफ कूच कर गए थे। गंगा जमुना के दोआबा में उस वक्त मौत के गहरे समंदर जैसी खामोशी तारी थी। ऐसे में करामती गंगा जमुना के दोआबा में कुछ जाग रहे थे, कुछ बेदार रहकर हिफाजत का फर्ज अदा कर रहे थे। रात आधी से जायद जा चुकी थी। एक तरफ से अचानक कजला खान अपने हिस्से के लश्कर के साथ नमूदार हुआ। फिर वो स्या रात के तारीक कफन में शिकस्तों के गुबार उड़ाती नाउमीदियों और महरूमियों की लहरों की तरह करामतियों पर हमलावर हो गया था। जवाब में करामती भी कल्बो जिगर तक की तहों में घुस जाने वाली पस्तियों और रुसवाइयों की तरह हमलावर हो गए थे। जिस वक्त कजला खान और करामती बुरी तरह आपस में टकराए थे, ऐन उसी वक्त करामतियों की पुष्ट की जानिब से कबीर खान अपने हिस्से के लश्कर के साथ नमूदार हुआ और वो मौत के खोलते सायों की तरह करामतियों की पुष्ट पर हमलावर हो गया था। गंगा जमुना के दोआबा में रात की गहरी तारीकी में हर कोई दूसरे पर अज़्म रासिख, जुर्रत मोहकम, अजीम एतमाद और लाजवाल बेखौफ जज्बों की तरह हमलावर होने लगा था। जिस्मों को तार तार करती चारसू भड़कती आग करिया करिया नगर नगर पुकारती मौत की तरह रक्स करने लगी थी। खाको खून कर देने वाली बिजलियों की कड़क, जल्जलों की धमक के अंदाज में हर कोई दूसरे को जेर करने के दर पे हो गया था। दोनों तरफ के लश्करी अपने तन मन धन की बाजी लगाते हुए अपने अपने काम की इब्तिदा कर चुके थे। करामती जो अपने आप को नाकाबिले तस्खीर समझते थे, गंगा जमुना के दोआबा में उन पर मुसीबत बनाई थी।
جس وقت اکیلا قزلہ خان ان پر حملہ ہوا تھا اس وقت ان کے جذبے، ان کی تقریب کاری کی قوت اپنے عروج اور اپنی جوانی پر تھی۔ چونکہ جو لشکر لے کر قزلہ خان حملہ ہوا تھا، گنگا جمنا کے دوآبہ میں کرامتیوں کی تعداد اس سے دگنے سے بھی زیادہ تھی۔ اس بنا پر جوابی کارروائی کرتے ہوئے وہ قزلہ خان پر بڑھ چڑھ کر ضربے لگانے لگے تھے اور یہ امیدیں واسق لگائے ہوئے تھے کہ تھوڑی دیر تک وہ حملاوروں کو نہ صرف شکست دیں گے بلکہ پوری طرح ان کا قتل عام کر کے ان کے ایک ایک فرد کو موت کے گھاٹ اتاریں گے اور کسی کو بھاگنے نہیں دیں گے۔ لیکن تھوڑی دیر بعد جب پشت کی طرف سے کبیر خان بھی حملاور ہو گیا تب کرامتیوں کے لیے مصیبت اٹھ کھڑی ہوئی۔ انہوں نے اپنے لشکر کو 2 حصوں میں بانٹ کر سامنے اور پشت کی طرف سے دفاع کرنا چاہا، لیکن ایسا نہ ہو سکا، اس لیے کہ جس وقت وہ اس تقسیم کا کام سر انجام دے رہے تھے، سامنے کی طرف سے قزلہ خان نے اپنے حملوں میں پہلے سے کہیں زیادہ شدت پیدا کر دی۔ ساتھ ہی وہ تکبیریں بھی بلند کرنے لگا تھا۔ ان تکبیروں سے شاید کبیر خان کو بھی کوئی پیغام مل رہا تھا، لہٰذا وہ بھی تکبیریں بلند کرتے ہوئے پہلے کی نسبت زیادہ شدت سے کرامتیوں پر حملاور ہونے لگا تھا۔ کافی دیر تک گھمسان کا رن پڑتا رہا۔ کرامتیوں کو امید تھی کہ اگر وہ دشمن کو شکست نہ دے سکے تو انہیں اس قابل کر دیں گے کہ جب سورج طلوع ہو تو وہ اپنا نقصان دیکھتے ہوئے پیچھے ہٹ جائیں۔ لیکن رات کی تاریکی میں جب کرامتیوں نے اندازہ لگایا کہ ان کی حالت تو بڑی بری ہوتی جا رہی ہے اور سامنے اور پشت دونوں طرف سے ان پر حملاور ہوتے ہوئے ان کی طاقت کا زور توڑ رہے ہیں اور ان کے لشکریوں کو موت کے گھاٹ اتارتے ہوئے بڑی تیزی سے ان کی تعداد کم کرتے جا رہے ہیں، اس بنا پر کور اور اسرام بھی اس وقت لشکر میں شامل تھے۔ وہ حرکت میں آئے، کور کی طرف سے نرسنگے بجائے گئے اور ان نرسنگوں کی آوازوں کے جواب میں کرامتی رات کی تاریکی میں بھاگ کھڑے ہوئے۔ تاہم قزلہ خان کے ایک لشکری نے اسرام کو گرفتار کر لیا تھا جبکہ کور بھاگنے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ قزلہ خان اور کبیر خان دونوں نے کرامتیوں کو شکست دینے اور انہیں مار بھگانے کے بعد صبح تک دریائے گنگا جمنا کے دوآبہ ہی میں قیام کیے رکھا۔ فجر کی نماز کے بعد لشکر کے کھانے کا اہتمام کیا گیا۔ اس کے بعد قزلہ خان اور کبیر خان اور کچھ دوسرے سالار ایک جگہ بیٹھ گئے۔ ساتھ ہی ایک چھوٹے سالار کو مخاطب کرتے ہوئے قزلہ خان کہنے لگا، ذرا کرامتیوں کے سربراہ کور کے نائب اسرام کو تو لاؤ، میں دیکھوں گے وہ کیا بلا ہے اور وہ ہندوستان کی سرزمینوں میں کیا چاہتے ہیں۔ تھوڑی دیر بعد وہ سالار لوٹ کر آیا اور اس کے ساتھ 2 محافظ بھی تھے جنہوں نے اسرام کو پکڑ رکھا تھا اور اسے لا کر قزلہ خان کے سامنے کھڑا کر دیا گیا تھا۔ قزلہ خان کچھ دیر تک سر سے لے کر پاؤں تک اسرام کا جائزہ لیتا رہا، پھر دھیمے سے لہجے میں اسے مخاطب کیا، ہندوستان میں تم کرامتیوں کا سردار اور سربراہ کور اس وقت کہاں ہے؟ اس پر اسرام کہنے لگا، گزشتہ شب کی جنگ کے دوران کور یہی تھا، لیکن میرے خیال میں اپنے بچے کچے لشکریوں کے ساتھ وہ بھاگنے میں کامیاب ہو گیا ہے۔ آخر تم ہندوستان کی سرزمینوں میں مسلمانوں کے مفادات کو نقصان پہنچا کر کیا حاصل کرنا چاہتے ہو؟ اس بار اسرام کی طرف دیکھتے ہوئے قزلہ خان نے کھولتے لہجے میں پوچھا تھا۔ جواب میں اسرام کہنے لگا، آپ جانتے ہیں کہ کبھی ملتان پر ہماری حکومت تھی جو ہم سے چھین لی گئی، کیا ہمیں اس کا حق نہیں پہنچتا کہ ہم چھیننے والوں سے اپنا انتقام لیں؟ اسرام کے ان الفاظ کے جواب میں کھا جانے والے انداز میں قزلہ خان نے اس کی طرف دیکھا، پھر کہنے لگا، تم لوگوں نے دہلی کی جامع مسجد میں نہ صرف نمازیوں پر حملہ کیا بلکہ سلطان شمس الدین التمش کو قتل کرنے کی سازش کی، تو کیا تم سمجھتے ہو اس کا انتقام لینے میں ہم حق بجانب نہیں ہیں؟ قزلہ خان کے اس سوال پر اسرام کی گردن جھک گئی تھی، کوئی جواب نہ دے سکا۔ قزلہ خان نے پھر اسے مخاطب کیا، تم لوگوں نے مہاکال مندر کے پجاریوں سے ساز باز کر کے دہلی کے جمال الدین کی دونوں لڑکیوں کو اٹھوایا، اس کے بعد دونوں کو ایک ٹھاکر کے حوالے کر دیا، جہاں ان دونوں بہنوں نے خودکشی کر کے اپنا خاتمہ کر لیا۔ کیا ہم تم سے تمہارے اس گھناؤنے فعل کا انتقام لینے میں حق بجانب نہیں ہے؟ تم نے اور تمہارے لومڑی کی طرح بھاگ جانے والے کور نے گنگا جمنا کے دوآبہ میں اپنی طاقت اور قوت کو جمع کیا، کیا تم بتا سکتے ہو کہ یہاں جمع ہو کر تم اگلی کارروائی کیا کرنا چاہتے تھے؟ اس پر اسرام کہنے لگا، میں نہیں جانتا کہ کیا ہونے والا تھا، یہ سارا کھیل کور کا تھا، وہ چونکہ جان بچا کر بھاگ چکا ہے لہٰذا مجھے کچھ علم نہیں، میں تو جو وہ کہتا تھا اسی پر عمل کرتا تھا۔ قزلہ خان کچھ دیر خاموش رہا، پھر گھورنے کے انداز میں اسرام کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، پیدائشی کرامتی ہو یا بعد میں بن گئے؟ میں پیدائشی کرامتی ہوں، اسرام نے دھیمے سے لہجے میں جواب دیا۔ کچھ دیر خاموشی رہی، اس کے بعد اسرام نے گردن سیدھی کی، قزلہ خان کی طرف دیکھا، پھر بڑی ڈٹھائی سے قزلہ خان کو مخاطب کر کے کہنے لگا، مجھے کوئی نقصان پہنچانے کی کوشش نہ کرنا، تمہاری بہتری اور بھلائی اسی میں ہے کہ مجھے رہا کر دو ورنہ بہت برا ہوگا، اور اگر تم نے مجھے کوئی نقصان پہنچانے کی کوشش کی تو میں ابھی سے تمہیں بتا دیتا ہوں کہ ہمارے آدمی زہریلے سانپوں کی طرح تمہارا تعاقب کریں گے، جہاں کہیں بھی تم جاؤ گے تمہارے پیچھے ہوں گے اور اس وقت تک تمہیں نہیں چھوڑیں گے جب تک تمہیں موت کے گھاٹ نہیں اتار دیں گے۔ اس وقت تلخ سی مسکراہٹ قزلہ خان کے چہرے پر نمودار ہوئی۔ چلو یہ بھی دیکھتے ہیں تم کرامتی میرا کیا بگاڑتے ہو، لیکن ایک بات تو بھی اپنے دل پر لکھ رکھ،
तू कत्ल होकर रहेगा। हर सूरत में तेरे जिस्म के टुकड़े किए जाएंगे। उसके बाद मैं देखूंगा कि करामती हिंदुस्तान की सरजमीनों में मुसलमानों के खिलाफ क्या हमाकत करते हैं। इसराम ने कोई जवाब ना दिया। कुछ देर खामोशी रही, फिर पहले की तरह खोलते लहजे में कजल खान ने इसराम को मुखातिब किया, क्या तुम बता सकते हो कि कौर भागकर किधर गया है? इसराम कुछ देर खामोश रहा, फिर निगाहें झुकाए कहने लगा, जब जंग हो रही थी मैं लश्कर के बाएं जानिब था। दाएं जानिब होने की वजह से उसे भागने का मौका मिल गया। हिंदुस्तान में तुम्हारे क्या मकासद हैं? शमसुद्दीन अल्तमश को तुम लोगों ने कत्ल करने की क्यों कोशिश की? इससे पहले तुम्हारे ही लोगों ने सुल्तान शहाबुद्दीन गौरी पर हमलावर होकर उसे शहीद किया था। क्या इन सारे जराइम के लिए तुम अपनी सफाई में कुछ कहना चाहते हो? इस पर इसराम कहने लगा, मैं बता चुका हूं कि मुल्तान में हमारी हुकूमत थी, वो खत्म कर दी गई। उसी को बुनियाद बनाते हुए हमने सुल्तान शहाबुद्दीन से इंतकाम लिया और उसी बुनियाद पर दिल्ली की जामे मस्जिद में हम सुल्तान शमसुद्दीन अल्तमश पर हमलावर हुए। इसराम जब खामोश हुआ तब गजला खान कुछ सोचता रहा, फिर अपने पहलू में बैठे एक सालार को मुखातिब करके कहने लगा, इस इसराम को एक तरफ ले जाओ और इसको इसके किए की सजा देकर वापिस आ जाओ। इस पर वो सालार उठा, इसराम को पकड़कर एक तरफ ले गया। तलवार बुलंद करके उसने उसकी गर्दन काट दी थी। उसके बाद कजल खान और कबीर खान दोनों अपने लश्कर के साथ गंगा और जमुना के दोआबा से निकले और ग्वालियर की तरफ रवाना हो गए थे। ग्वालियर का मुहासरा तूल पकड़ता गया था। उसकी वजह यह थी कि फसील बेहद मजबूत और मुस्तहकम थी। दूसरे ये कि सुल्तान के पास किला शिकन आलात नहीं थे। उन हालात में सुल्तान शमसुद्दीन अल्तमश ने एक बार फिर अपने सारे सालारों का इजलास तलब कर लिया था। जब सारे सालार सुल्तान के खेमे के बाहर जमा हो गए तब सुल्तान ने गहरी निगाह से सबका बारी बारी जायजा लिया। उसके बाद कहने लगा, ग्वालियर का मुहासरा हमारी तवक्कुआत के कहीं खिलाफ तूल पकड़ता जा रहा है। अब मैं मजीद वक्त जाया नहीं करना चाहता। मेरी ख्वाहिश है कि ग्वालियर को फतह करने में अब मजीद वक्त बर्बाद न किया जाए, लेकिन मैं ग्वालियर को फतह किए बगैर टलूंगा भी नहीं। इसमें कोई शक नहीं हमारे पास किला शिकन आलात नहीं है, जिसकी बिना पर इस मुहासरे ने तूल पकड़ा। मेरे अजीज भाइयों, थोड़ी देर पहले मुखबिर ये खबर भी लेकर आए हैं कि ग्वालियर के राजा मंगल देव ने शहर पनाह के दरवाजे से बाहर गोखरू बिछा रखे हैं और अगर हमारा कोई भी लश्करी वो गोखरू हटाने के लिए आगे बढ़ता है तो फसील के ऊपर से उन पर जानलेवा तीरंदाजी की जाती है। इसका मतलब है जो तरीका इससे पहले हमने इस्तेमाल किया था कि एक छकड़े में बड़े दरख्त का तना गाड़ने के बाद उस छकड़े के आगे बैल जोतने के बाद उस तने की जरबें शहर पनाह पर लगाई थी और शहर पनाह का दरवाजा टूट गिरा था। अब ये तरीका कार हम इस्तेमाल नहीं कर सकते, इसलिए कि दरवाजे के सामने गोखरू बिछा दिए गए हैं, जिसकी वजह से वहां ना इंसान चल सकता है ना घोड़े दौड़ सकते हैं। मेरे भाइयों, ग्वालियर को फतह करने का तरीका हम वही रखेंगे। इस वक्त हमारे लश्कर में छकड़े भी काफी हैं, बैल भी हैं, लिहाजा आने वाली शब में इर्द गिर्द का जायजा लो। जो दूर नजदीक बहुत बड़ा दरख्त हो उसका इंतखाब करो, उसे काटो, उसके बाद उसे पहले की तरह एक छकड़े में नस्ब करने के बाद इस बार उससे शहर पनाह के दरवाजे पर नहीं शहर की फसील पर जरब लगाएंगे। इसलिए कि शहर पनाह के दरवाजे पर जरब इसलिए नहीं लगाई जा सकती कि उसके सामने काफी घोखरू बिछा दिए गए हैं और अगर हम अपने लश्करी मुकर्रर करते हैं कि घोखरू को वहां से हटा दें तो फसील के ऊपर से तीर अंदाजी की जाती है जो नुकसान का बायस बनती है। इस बिना पर शहर पनाह के दरवाजे की बजाय इस बार हम हदफ फसील को बनाएंगे। सुल्तान शमसुद्दीन अल्तमश की उस तजवीज से उसके सालारों ने इत्तेफाक किया था। चुनांचे ये फैसला हुआ कि आने वाली शब में उस काम को आखिरी शक्ल दी जाए। लश्कर का एक हिस्सा मुतय्यन किया गया, बाकियों को मुस्तैद रखा गया। चुनांचे रात की गहरी तारीकी में एक बहुत बड़ा दरख्त काटा गया, उसके तने को दुरुस्त करके रात के वक्त ही उसे एक छकड़े के अंदर मजबूती से नस्ब किया जाने लगा था। उसी रात ग्वालियर का राजा मंगल देव शहर पनाह की सीढ़ियों के पास अपने चंद उमरा और सालारों के साथ बैठा हुआ था कि उसके कुछ मुखबिर उस दरवाजे से शहर में दाखिल हुए जिस तरफ सुल्तान शमसुद्दीन अल्तमश का लश्कर नहीं था। वो मुखबिर करीब आकर अपने घोड़ों से उतरे। राजा मंगल देव को उन्होंने ताजीम दी, यहाँ तक कि राजा मंगल देव ने उन्हें मुखातिब किया, क्या तुम हमारे पास मुसलमानों की कमजोरी की कोई खबर लेकर आए हो? इस पर उनमें से एक राजा को मुखातिब करके कहने लगा, हम एक तासुफ आमेज खबर लेकर आए हैं। मैं समझता हूँ हमसे बड़ी भूल चूक हुई, हमने एक सुनहरी वक्त से फायदा नहीं उठाया। अगर हम उस सुनहरी मौके से फायदा उठाते तो आज यकीनन दिल्ली का सुल्तान शमसुद्दीन अल्तमश हमारे सामने जेर होकर रहता। यहाँ तक कहने के बाद वो मुखबिर जब दम लेने के लिए रुका तब उसे मुखातिब करके मंगल देव कहने लगा, जो कुछ कहना चाहते हो खुलकर कहो, मैं तुम्हारी ये पहेली समझा नहीं। इस पर वही मुखबिर फिर बोल उठा, कहने लगा, मैं कह रहा था कि हमने एक सुनहरी मौका जाया कर दिया कि हम सुल्तान शमसुद्दीन अल्तमश को अपने सामने घुटने टेकने पर मजबूर कर सकते थे। मालिक, हुआ यूं के चंद दिन पहले करामतियों का एक बहुत बड़ा गिरोह गंगा जमुना के दोआबा में जमा हुआ था।
اور ایسا انہوں نے اپنے سردار کور کے کہنے پر کیا تھا۔ دراصل کور نے اپنے خفیہ نمائندوں کے ذریعے جہاں جہاں بھی کرامتی بیٹھے ہوئے ہیں ان کو پیغام بھجوایا کہ وہ فی الفور گنگا جمنا کے دوآبہ میں پہنچ جائیں۔ صرف گجرات والوں کو اطلاع نہیں کی تھی، لیکن ایک تو وہ دور تھے، لہٰذا وہاں سے بر وقت پہنچنا مشکل تھا۔ مالک شمس الدین التمش کو اس کے مخبروں نے کرامتیوں کی گنگا جمنا میں جمع ہونے کی اطلاع کر دی۔ چنانچہ کرامتیوں پر ضرب لگانے کے لیے سلطان التمش نے اپنے 2 سالاروں کا انتخاب کیا، ایک قزلہ خان اور دوسرا کبیر خان، اور یہ دونوں ایسے انداز میں حملہ ور ہوئے کہ ان میں سے اکثریت کو موت کے گھاٹ اتار دیا گیا، جو بچے وہ بھاگ کر مہاکال کے مندر میں پناہ لے چکے ہیں۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم نے ایک سنہری موقع اس طرح ضائع کیا کہ جس وقت سلطان شمس الدین التمش کے لشکر کا ایک حصہ قزلہ خان اور کبیر خان کی سرکردگی میں گوالیار کے نواح سے اٹھ کر کرامتیوں پر ضرب لگانے کے لیے گیا تھا، اس وقت اگر ہم گوالیار سے نکل کر ایک دم شمس الدین التمش کے لشکر پر حملہ ور ہو جاتے تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں اس وقت ہماری فتح یقینی ہوتی، اور اگر گوالیار کے نواح میں شمس الدین التمش کو ہم شکست دینے میں کامیاب ہو جاتے تو پھر دہلی تک کوئی بھی قوت ہماری راہ نہ روک سکتی اور شمس الدین التمش کا خاتمہ کر کے دہلی کی حکمرانی ہمارے ہاتھ میں ہوتی۔ وہ مخبر جب خاموش ہوا تب منگل دیو کہنے لگا، یہ کوئی اہم خبر نہیں ہے، شمس الدین التمش ایک بار ہمیں شکست دے چکا ہے، لہٰذا اس کے مقابلے میں ہمارے لشکری شکستہ دل ہیں۔ التمش کے لشکر کے ایک حصے کے گنگا جمنا کے دوآبہ کی طرف چلے جانے کے باوجود اگر ہم شہر سے نکل کر شمس الدین التمش پر حملہ ور ہوتے تو ہمیں کامیابی نہ ہوتی، اس لیے کہ ایک بار شکست کھانے کے بعد ہمارے لشکریوں پر مسلمانوں کا رعب اور دبدبہ چھا چکا ہے۔ اس کے علاوہ اس سے پہلے مخبر ہمیں یہ بھی اطلاع دے چکے ہیں کہ التمش کے لشکر کا ایک حصہ ہمہ وقت چوکس اور بیدار رہتا ہے، اور اگر ہم گوالیار سے نکل کر حملہ ور ہوتے تو ایسا کر کے ہم یقیناً اپنی موت کو دعوت دیتے۔ اس موقع پر کسی کو افسوس کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب دیکھتے ہیں مسلمان گوالیار پر حملہ ور ہونے کے لیے کیا تدبیر اختیار کرتے ہیں۔ ان کے پاس فصیل گرانے کا کوئی اوزار نہیں ہے، اسی بنا پر وہ شہر سے ہٹ کر اپنے لشکر کے ساتھ پڑاؤ کر چکے ہیں اور شہر کو فتح کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی ہیلا و حربہ استعمال کریں گے۔ بہرحال ہمیں بیدار اور محتاط رہنا ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی منگل دیو اٹھا، پہلے فصیل پر چڑھا، اپنے سارے سالاروں کے ساتھ فصیل پر چوکس بیٹھے اپنے لشکریوں کی طرف دیکھا اور پھر مطمئن ہونے کے بعد وہ اپنے قصر کی طرف چلا گیا تھا۔ دوسرے روز سپہر تک سلطان شمس الدین التمش کے سالاروں اور لشکریوں نے شہر کی فصیل پر ضرب لگانے کے لیے ایک کافی لمبا اور موٹا تنا ایک چھکڑے کے اوپر جمع کر رکھ دیا تھا۔ سلطان کے لشکر میں کوئی اس قسم کے صناع یا کاریگر یا فصیل گرانے یا فصیل کو بھگ سے اڑانے کا کوئی سامان نہ تھا، اس بنا پر اسی تنے سے کام لینے کا فیصلہ کیا گیا تھا۔ چنانچہ عصر کی نماز کے بعد سلطان کے حکم پر کام شروع ہوا۔ ایک چھکڑے کے آگے 2 مضبوط و توانا اور خوب قداور کھچر جوتے گئے تھے اور چھکڑے کے اگلے حصے پر لکڑی کے تختے کچھ اس طرح آگے بڑھا کر لگائے گئے تھے کہ اگر فصیل کے اوپر سے تیر اندازی کی جائے تو چھکڑے کے آگے کھچروں کو نہ لگے۔ اس کے علاوہ اس چھکڑے کے دائیں بائیں بھی لکڑی کے کچھ تختے بڑھا دیے گئے تھے اور انہی کے نیچے رہتے ہوئے لشکری کھچروں کو ہانکتے تھے۔ چھکڑے کے اندر درخت کا موٹا تنا نصب کر دیا گیا تھا۔ چنانچہ سلطان شمس الدین التمش کے سالاروں اور لشکریوں نے اپنے کام کی ابتدا کی۔ کھچروں کو پوری رفتار سے بھگایا جاتا، اوپر سے گوالیار کے لشکری بھرپور تیر اندازی کرتے، لیکن ان کے لیے مصیبت یہ تھی کہ چھکڑوں کے آگے جو توانا اور بڑے بڑے کھچر جتے ہوئے تھے، چھکڑے سے متصل 4 تختے خوب آگے بڑھے ہوئے تھے جو کھچروں کے آگے تک آ گئے تھے، لہٰذا فصیل سے جو تیر اندازی ہوتی تھی اس سے کھچروں کو نقصان نہیں پہنچتا تھا۔ اس کے علاوہ چھکڑے کے دائیں بائیں بھی تختوں کے کچھ حصے بڑے ہوئے تھے اور ان بڑے ہوئے تختوں کے نیچے رہ کر لشکری چونکہ کھچروں کو ہانکتے تھے، لہٰذا تیر اندازی سے کھچروں کو ہانکنے والے بھی محفوظ تھے۔ پہلی 4-5 ضربوں تک فصیل پر کچھ اثر نہ ہوا۔ مزید ضربوں کے بعد آخر جب فصیل پر تنے کی چوٹ پڑتی رہی تو اس چوٹ کی آواز تبدیل ہونا شروع ہو گئی۔ پہلے آواز بڑی کڑکدار تھی جو یہ ظاہر کرتی تھی کہ فصیل بڑی مضبوط اور مستحکم ہے، اس طرح تنے کی چوٹ سے گرنے والی نہیں، اور پھر کافی ضربیں پڑنے کے بعد آواز تبدیل ہونا شروع ہوئی اور اس میں بھربھرا پن آنا شروع ہوا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ اندر سے دیوار کہیں نہ کہیں ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو رہی ہے۔ حالانکہ دیوار کافی اونچی اور چوڑی تھی۔ شام تک یہ جدوجہد جاری رہی اور شام تک مسلمان لشکریوں نے اس تنے کی ضربیں لگاتے ہوئے ایک طرح سے فصیل کو ہلا کر رکھ دیا تھا اور فصیل کے اندر ایک خاصی بڑی اور چوڑی دراڑ پیدا ہو گئی تھی۔ اس روز اتنا ہی کام کیا گیا اور سلطان نے لشکریوں کو واپس بلا لیا اور حکم جاری کیا کہ آج چونکہ عصر کے کافی بعد کام شروع کیا گیا تھا، اس کے باوجود بہترین کارگزاری کا مظاہرہ کیا گیا ہے اور فصیل کے اندر دراڑ ڈال دی گئی ہے۔
चुनाचे सुल्तान ने हुक्म दिया, बाकी काम कल किया जाएगा। दीवार के एक हिस्से को गिराकर हर सूरत में ग्वालियर को फतह करने की कोशिश की जाएगी। इस बिना पर लश्करी पीछे हट गए थे। लश्कर का एक हिस्सा सुल्तान ने मुस्तैद कर दिया था और बाकी लश्कर को उसने आराम करने का मौका दे दिया था। दूसरी तरफ जब फसील के अंदर दरार पड़ गई, तब राजा ने एक बार फिर अपने सारे उमरा और सालारों का इजलास तलब कर लिया। उस मौके पर राजा मंगल देव अपने सालारों और उमरा को मुखातिब करके कहने लगा, मैं समझता था ग्वालियर की फसील बड़ी मजबूत और मुस्तहकम है। मुसलमान बादशाह और उसके सालार और लश्करी ग्वालियर की दीवार से सर टकरा टकरा कर और थक कर वापिस दिल्ली जाने पर मजबूर हो जाएंगे। मेरे लिए मुश्किल यह है कि शहर से बाहर निकलकर मुसलमानों का मुकाबला नहीं कर सकता। एक बार हमें शिकस्त हो चुकी है और उस शिकस्त के नतीजे में मुसलमान लश्करियों के हौसले बुलंद हो चुके हैं और हमारे लश्करियों पर दिल शिकनी और शिकस्तगी तारी है। और जब मेरे पास ये खबरें आई कि मुसलमानों ने एक दरख्त के तने की जरबे लगाते हुए फसील के एक हिस्से में दरार पैदा कर दी है, तो ये इंकशाफ हमारे लिए ज्यादा कर्ब खेज है। अगर मुसलमानों ने इस काम की इब्तदा सुबह से कर दी होती तो शायद सूरज गरूब होने से पहले पहले वो फसील का एक खासा बड़ा हिस्सा गिराकर शहर में दाखिल होने में कामयाब हो जाते। लेकिन फसील पर जरबे लगाने का काम चूंकि उन्होंने असर के बाद शुरू किया था, लिहाजा शाम तक वो फसील के अंदर एक खासी बड़ी दरार पैदा करने में कामयाब हो गए हैं। इन हालात में मैं तुमसे पूछता हूं कि हमें क्या करना चाहिए। इतना कहने के बाद मंगल देव रुका, फिर दोबारा अपने सालारों और उमरा को मुखातिब करके कहने लगा, मुझे कोई मशवरा देने से पहले यह सोचना कि असर के बाद काम शुरू करके शाम तक मुसलमानों ने शहर की फसील के अंदर खासी बड़ी दरार डाल दी है और फसील का वो हिस्सा लरज कांप गया है और यकीनन अंदर से खोखला हो चुका होगा। यह भी याद रखना कि कल मुसलमान फिर इसी काम की इब्तदा करेंगे और जहां उन्होंने दरख्त के तने की जरबे लगाते हुए फसील के अंदर जोफ और दरार पैदा कर दी है, याद रखना वहीं वो दोबारा जरबे लगाना शुरू कर देंगे। हर सूरत में दीवार का एक हिस्सा गिराएंगे। उसके बाद जब वो शहर में दाखिल होंगे तो शहर के अंदर जो शख्स भी उन्हें हथियार उठाता नजर आएगा वो जिंदा नहीं बचेगा, कत्ल कर दिया जाएगा। इन सारी चीजों को सामने रखते हुए मुझे कोई मशवरा देना, फिर उसके मुताबिक अमल करूंगा। ग्वालियर का राजा मंगल देव जब खामोश हुआ तब उसका एक मुशीर बोल उठा और कहने लगा, अगर आप समझते हैं कि फसील शिकस्ता हो चुकी है और कल मुसलमान उसे गिराने में कामयाब हो जाएंगे, तो ये बात तो तयशुदा है कि अगर फसील गिरी तो मुसलमान आंधी तूफान और सिलाबी रेले की तरह शहर में दाखिल होंगे और हमें वो नुकसान उठाना पड़ेगा जिसका इस वक्त हम अंदाजा नहीं लगा सकते। लिहाजा मैं जाती तौर पर यह मशवरा दूंगा कि मुसलमानों से माफी मांग लेनी चाहिए और उनसे सुलह कर लेनी चाहिए। अपने उस मुशीर के उन अल्फाज पर मंगल देव के चेहरे पर तंजिया सी मुस्कुराहट नमूदार हुई। फिर अपने उस मुशीर को मुखातिब करके कहने लगा, जो कुछ तुमने कहा है बज़ाहिर उसमें बड़ी दिलचस्पी, बड़ा अमन और सुकून है, लेकिन यह भी देखो कि माजी में हमने सुल्तान शमसुद्दीन अल्तमश के मफादात को काफी मर्तबा नुकसान पहुंचाया। इस बिना पर हमारी हरकत को सामने रखते हुए सुल्तान हमें माफ नहीं करेगा। अगर हम सुलह कर भी लेते हैं, सफेद झंडे लहराते हुए लश्कर की तरफ जाते हैं, तो मुझे खदशा है कि सुल्तान ये मुतालबा करेगा कि ग्वालियर के राजा को उसके हवाले कर दो, और अगर ऐसा हुआ तो शमसुद्दीन अल्तमश मेरी गर्दन जरूर काटेगा। लिहाजा इस मौके पर मेरे जहन में यह तजवीज है कि आज आधी रात के वक्त मैं अपने बड़े सालारों और उमरा और लश्कर के एक हिस्से के साथ ग्वालियर के खुफिया दरवाजे से निकलकर महाकाल मंदिर की तरफ रवाना हो जाऊंगा। अब तक जो खबरें हमारे पास आई हैं वो ये कि गंगा जमुना के दुआबा में ये जो कौर और इसराम के साथ सुल्तान शमसुद्दीन अल्तमश के सालार कजला खान और कबीर खान का मुकाबला हुआ था, तो उस मुकाबले में करामतियों को बदतरीन शिकस्त का सामना करना पड़ा है। उनका नायब सालार इसराम मारा जा चुका है, जबकि कौर अपने बचे कुचे साथियों को लेकर महाकाल मंदिर में पनाह ले चुका है। लिहाजा मैं चाहता हूं कि आधी रात के वक्त हम भी यहां से निकलें और महाकाल मंदिर में जाकर पनाह ले लें। शमसुद्दीन अल्तमश महाकाल पर गिरफ्त करने में कामयाब नहीं हो सकेगा। उसकी दो वजूहात हैं। पहली वजह यह कि महाकाल एक मंदिर है, लिहाजा मुसलमान सुल्तान की हैसियत से शमसुद्दीन अल्तमश उसका एहतराम करेगा, इसलिए कि मुसलमान दूसरों की इबादत गाहों में दखल अंदाजी नहीं करते और उनका एहतराम करते हैं। दूसरी वजह यह कि महाकाल मंदिर की फसील इतनी ऊंची है कि कोई उसे फलांग ही नहीं सकता, और फसील के अंदर जो सीढ़ियां बनी हुई हैं उन सीढ़ियों ने फसील की चौड़ाई को बहुत ज्यादा वसी कर दिया है। इस बिना पर बाहर से महाकाल मंदिर की फसील पर कितनी ही जरबे लगाई जाए, किसी भी हिस्से से उसके शिकस्ता होने की कोई उम्मीद नहीं है। लिहाजा मैं आज आधी रात के वक्त अपने लश्कर के बड़े हिस्से और सालारों और चीदा चीदा उमरा के साथ ग्वालियर से निकलकर महाकाल मंदिर की तरफ रवाना हो जाऊंगा। अब तुम में से किसी को इस पर एतराज हो तो कहे। ग्वालियर के राजा मंगल देव की उस तजवीज और मंसूबा बंदी पर तकरीबन सब ने ही इत्तेफाक किया,
لہٰذا وہ اجلاس منتشر ہو گیا اور آدھی رات کے وقت منگل دیو اپنے چیدہ چیدہ سالاروں اور لشکر کے بڑے حصے اور چیدہ چیدہ امارا کو لے کر گوالیار کے اس دروازے سے نکلا جو اس دروازے سے بالکل مخالف سمت تھا، جس دروازے کے سامنے سلطان شمس الدین التمش نے پڑاؤ کیا ہوا تھا۔ چنانچہ آدھی رات کے وقت منگل دیو اس دروازے سے نکل کر ایک لمبا کعوہ کاٹتے ہوئے مہاکال مندر جا پہنچا تھا۔